Okay. So, okay, so we can start. So, we are discussing about the NMR. So, I told you that the nuclei, it's spinning. Okay, it spins, and that uh, create a magnetic field. Okay, and this spinning nuclei, this nuclei, they are having a angular momentum. Okay, and due to angular momentum, they have quantized spin states. So, depending upon the number of nucleons, and depending upon different atoms, the different nuclei, they are having different spin quantum number. Okay, the value of S, the spin quantum number. So, and I told you that if a nuclei, if it need to be NMR active, then the value of I, it should be greater than 0. Okay. So, and we related it. We related the value of I and the NMR susceptibility of the different nuclei with respect to the atomic number and atomic masses of the nuclei. Okay, so as I told you, the nuclei which are having even atomic, which are having odd atomic mass, and even or odd atomic number. So those, all of those nuclei, they are NMR active. Okay, and their uh, spin quantum number is half integral, 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2. Okay, if the nuclei, if they are having or this mass number and atomic number. So if this mass number, so for example, if it is odd and atomic number is either odd or even. Okay, so the value of I is half integral, 1 by 2, 3 by 2, and so. So if mass number is even and atomic number is odd, then the value of I is integer, 1, 2, 3, 4. Okay. And if it is mass number is even and atomic number is again even, in that cases the value of I is 0, and these kind of nuclei, they are NMR inactive. Okay. And now what is happening? I told you that when these nuclei, when they are placed inside the magnetic field, okay, so they get aligned. So they get two kind of orientations. One is parallel to the magnetic field, and another one is anti-parallel to the magnetic field. Because the one which is parallel to the magnetic field is energetically lower energy states, and the other one which is anti-parallel to the magnetic field. So that state is high in energy. Okay. So the spinning nuclei, so they can, so these nuclei, so they can rotate either clockwise or anti-clockwise directions. Okay. So this is the spinning nuclei when it is under the influence of a magnetic field. Okay. So it spins. Okay. As well as it has a precessional frequency. It also spins around its axis. So that with that precessional frequency. Okay. And so this one, when this nuclei is supplied with another energy source, with another frequency. Okay. जब इसको हम और frequency supply करते हैं, in the energy supply करते हैं in the form of a frequency. Okay. Then if the precessional frequency and the supplied frequency, ठीक है, जो हम energy supply कर रहे हैं उसकी radiation की frequency, if both of them are same, okay, then this nuclei absorb energy in the lower state and go to the higher energy state. So then it get flipped, and this nuclei, it gets flipped and go to the higher energy states. Okay, and this flipping, we call it this is known as resonance. Okay, so this phenomenon is
known as resonance. Okay, so what happens when the precessional frequency, the nuclei is moving with the precessional frequency, and the radiations of same frequency is applied to that nuclei. So that nuclei it absorb energy, and it gets flipped, because there is flipping. So we call it, this nuclei is in resonance with the applied frequency. So that is why, so from here we are getting this NMR. So nuclear, dealing with the nucleus, and M magnetic field. The spinning nuclei is having magnetic field, and R is resonance. Okay, resonance when the frequency, precessional frequency of the nuclei is coming in resonance with the applied frequency. Okay, so this is basically what happening here. Okay, now, so we also discussed that the generally the nuclei. So this is the applied magnetic field, and this is the energy. In terms of energy and generally nuclei. So all the nuclei, they are whether they are having parallel spin or anti-parallel spins. Okay. So most of the nuclei, so they generally orient in different directions. Okay, but when they brought under the magnetic field, then they are having only two. So their net magnetic moment, in that case, in the absence of magnetic field, is zero. Okay, but in the presence of, when they are brought under the influence of the magnetic field, okay, then the nuclei, okay, they have only two orientations: parallel to the field and anti-parallel to the field. Okay. So in between these, either it will be parallel or it will be anti-parallel. So these only two orientations are possible. Okay. So when flight field is applied, so these nuclei, they split into two energy states. Okay. So depending upon the strength of the applied field, how much is that? So one which is parallel to the field, and another one which is anti-parallel to the field. Okay. So for example, for hydrogen nuclei or for proton, which we will study. So proton is having atomic number 1 and mass number 1, 1h1. Okay, and it is having a spin I is equal to 1 by 2. Okay, so the spin quantum number is 1 by 2. Okay. So how many spin states it can exist? So that is given by the formula 2I plus 1. Okay. So how many different orientations it can have? So 2I plus 1. So that will give you the two orientation. When the value of I is equal to 1 by 2. So 1 plus 1 will be equal to 2. Okay. So it means the hydrogen nuclei, it exists in two different states. Okay. And these two different states are plus 1 and plus half and minus half. Okay. So these two different states, one is plus half, another one is minus half. So these, it exists in these are energy difference between the two. Okay. Okay. So now these nuclei. Okay. So in the presence of magnetic field, the nuclei there exist. So there are a number of nuclei, millions of nuclei in a particular sample. We are just discussing the case of two nuclei only. So one of the nuclei is like having plus half state, and another one is having a minus half state. Okay, but there are millions. There are so many, much number of the nuclei. Okay, so generally these nuclei, they exist. So they have the equilibrium state. So what is happening there? So most of the nuclei. So these two different states. Okay. So they are separated with very small energy difference, delta E. Okay. So delta E. So this energy difference is very small. Okay. And okay. So when the nuclei, it absorbs energy, even it can absorb energy at room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अब्सॉर्ब करके इसको एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, अब्सॉर्ब करके कैन गो टू द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, एंड देन the excited state is unstable.
So it emits energy and again come back to the ground state. ठीक है, तो जो दो इसकी न्यूक्लियर स्टेट है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल से एनर्जी लेके एंटी पैरेलल स्टेट में जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन फ्रॉम द एंटी पैरेलल स्टेट, सो इट emits energy and come back to the ground state. Okay, so that emitted energy delta E, so that appears delta E is equal to H into delta U. Okay, so that appears in the form of signal at a particular frequency. Okay, signal appears. Okay, and that signal recorded by the detector. So detector, and then it goes to the amplifier. It amplifies it, and then on the screen, on the display. Okay, so we get these kind of NMR signals. So it is how we are getting the NMR signal. Okay, well, we will be discussing it. Means how what exactly is happening here. So before understanding that, how we are getting the NMR signal, or what is the theory of NMR? उसका exactly theory क्या है? Okay, before getting into that, we need to understand these two different states. The distribution of the nuclei, okay, which are having parallel spins and anti-parallel spins in two different states. Okay, and we call it population density. So population density in two different states of the nuclei. So population densities, and this can be understood with the help of Boltzmann population distribution. Population distribution of the nuclei. Okay. So what we are saying? Okay. So we have to calculate how many nuclei they are lying in the ground state and how many nuclei they are lying in the upper state. Okay, so the number of nuclei, so n in the upper state and number of nuclei and in the lower state. So these are the distribution of different nuclei. Okay, and this density, this ratio is which can be calculated from the Boltzmann equations. The Boltzmann equations are, so that is equal to E raised to power minus delta E upon KT. Okay, so this is the difference. So E is equal to minus delta E upon KT. Okay, or you can also write it as E is equal to minus delta E can be written as H into delta nu upon KT. Okay, so this is the Boltzmann distribution constant, the equations. This is the equation, Boltzmann distribution equations, and these equations, with the help of this equation, you can calculate the population density, okay, in between the two layers. So upper state and the ground state. So how many nuclei are in the upper state and how many nuclei are there in the ground state? Okay, so that will give you idea. So H is, you know, it is Planck's constant. H is Planck's constant. So and its value is 6.624 into 10 to the power minus 34 joule second. So it is joule second. Okay, and the value of K is Boltzmann constant. It is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Okay, and T is absolute temperature. It is absolute temperature. Okay. So by putting these values, so this population density, it can be calculated. Okay. So when these values were put in, okay, then it was found that the energy difference between these two states, so delta E, it comes
out to be at 25 degree centigrade, जिसको room temperature बोलते हैं जनरली, और we call it 298 Kelvin. 25 degree centigrade or 298 Kelvin. So this energy difference between these two states, E1 and E2, so it comes out to be 2.39 into 10 to the power minus 5 kilojoule per mole. So this delta E is the energy difference between two states. इन दो states के बीच में जो energy difference है, it is coming out to be this much at 25 degree centigrade. ठीक है. Now, ठीक है. So we know that delta E is equal to H into delta nu. ठीक है. So it means, so from here we can calculate the value of nu. अगर हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू है, H कांस्टेंट है, so this nu can be calculated that which frequency is required. और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में हमें वो एनर्जी मिलेगी. ठीक है. एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियाई, हमें न्यूक्लियाई को उस स्पिनिंग जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस डेल्टा न्यू इज द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के बीच में ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा ई. एंड डेल्टा ई क्या है, उसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये लोअर न्यूक्लियस है, the nucleus which is in the lower energy states, और E2 is the nucleus in higher energy states. ठीक है. तो लोअर से हायर में कब जा रहा है कि जब उसकी जिस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पे वो प्रीसेस कर रहा है, ठीक है, जब उसको हम उतनी ही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी देंगे, वो ऊपर वो फ्लिप कर जाएगा. ठीक है. ये न्यूक्लियस ये क्लॉकवाइज कर रहा है, फ्लिप कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ठीक है. इट विल गो टू, वी कॉल इट, इट गो टू द हायर एनर्जी स्टेट्स, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. ठीक है. सो दिस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, इट कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट न्यूक्लियस. ठीक है. ये ध्यान रखना आप. तो नो दिस डेल्टा न्यू, ठीक है, सो डेल्टा न्यू इट कम्स आउट टू बी दिस मच. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा न्यू कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है. एंड दिस न्यू, दिस फ्रीक्वेंसी, इट लाइज इन रेडियो वेव रीजन. जो रेडियो वेव्स है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉस्मिक रेज. ठीक है. कॉस्मिक एक्स रेज, देन यूवी विजुअल, देन आईआर. ठीक है. उसी तरह से करते करते तो जब आप लास्ट में आ जाते हो, रेडियो वेव्स में आ जाते हो. ठीक है. सो जो सबसे ऊपर है कॉस्मिक रेज है, तो कॉस्मिक रेज की वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम. ठीक है. वो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, अगर आपको पूरा पता होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. सो वी स्टार्ट विद कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज देखिए, देन टू द रेडियो वेव्स. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. ठीक है. तो इसी में करते करते यू आर हैविंग कम्स यूवी विजिबल, देन आईआर. ठीक है. ये करते करते ये एक्स रेज. सो इन दिस केस, so you this radio waves. Okay, so this is having maximum frequency is maximum for cosmic rays, and the value of nu is minimum for radio waves. Okay, और opposite, क्योंकि जो nu और c में रिलेशनशिप होती है, so nu is equal to c upon lambda. ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इनके बीच में रिलेशनशिप है. सो इनवर्स रिलेशनशिप है. तो जिस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होती है. जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है. और जिस, बिकॉज E is directly proportional to frequency, energy is directly proportional to the frequency, so it means जिस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा एनर्जेटिक होगी. ठीक है. जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, वो कम एनर्जेटिक होगा. जैसे हमें पता है, हम जब यूवी विजिबल आईआर रीजन में काम करते हैं, ठीक है, तो जनरली यूवी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो दे आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस. विजिबल की उससे कम हो जाती है एनर्जी, आईआर की उससे कम हो जाती है. देखो सिमिलरली, so in this electromagnetic spectrum, so radio waves, they are having the minimum frequency, okay, and maximum wavelength.
इट मींस दे आर हैविंग मिनिमम एनर्जी टू, उनका जो एनर्जी है वो मिनिमम है, ठीक है। और कॉस्मिक रेज का सो दे आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है ना। तो इस व्हेन इट इज कैलकुलेटेड, ये दोनों एनर्जी के स्टेट्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है, सो दिस डिफरेंस इज about 2.39 into 10 to minus 5 kilojoule per mole. So that means, so this frequency it corresponds to the radio wave regions, the radio frequency. Okay. So that is why, okay, we used radio waves while doing the NMR experiments. ठीक है, आप अब UV भी पढ़ रहे होंगे आप लोग आजकल, IR भी पढ़ना है आपने, ठीक है। IR के बाद then we are coming to the NMR, ठीक है। So जो रेजोनेंस आएगी, जो एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है, दैट लाइज इन द रेडियो वेव रीजन्स, ठीक है। और रेडियो वेव रीजन में लाइक कर रहा है, मींस द वैल्यू ऑफ न्यू इज वेरी स्मॉल, सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू एक्साइट द न्यूक्लियस और टू ब्रिंग द न्यूक्लियस इनटू रेजोनेंस, ठीक है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है वो बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस दोनों स्टेट्स के बीच में, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। और इतना कम है कि अगर आपने रूम टेम्परेचर पे भी सैंपल को रखा है, ठीक है, सो इटसेल्फ जो न्यूक्लियस है, सो दे कैन अब्सॉर्ब एनर्जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दे कैन अब्सॉर्ब एनर्जी इन द रूम टेम्परेचर एंड देन दे कैन गो टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एंड देन अगेन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी is sufficient to do the transitions in the excited state, okay. So okay, so this is the equations, and when the calculations were done, okay, so this is Boltzmann distributions for Boltzmann equations for the distributions of nuclei in two different states, and when these calculations were done, so at 60 megahertz, अगर आप 60 megahertz पे then these calculations were done, okay. So this is n upper minus n lower, okay. So n stands for number of nuclei in upper energy states and number of nuclei in the lower energy states. So it forms to be for every 1 million, or you can say 10 lakh. So for every 10 lakh nuclei in the upper states, there are 10,09 nuclei in the lower energy states, okay. So this energy difference comes out to be, सर थोड़ा ऊपर लिखिए बोर्ड पे प्लीज, यहाँ पे विजिबल नहीं है नीचे। अच्छा नहीं दिख रहा है, यस सर ठीक है अभी ठीक है। So for every these 10 lakh nuclei, अगर हम 10 लाख न्यूक्लियई और we call it 1 million nuclei are there in the upper energy states, ठीक है। Then there are 10,09 nuclei in the lower energy states, okay. So this distribution it comes out to be 0.0999 something, okay. It comes out to be this much, okay. So we can say that in total we are having 10 lakh ये है, 10 lakh ये upper energy states में, 10 lakh lower energy states में, तो these are almost 20 lakh. So अगर हम 20 lakh न्यूक्लियई का एक डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है, अगर हम उनका एनालिसिस करते हैं, तो if in a sample we are having 20 lakh nuclei, then the distributions, the relative distribution of these in the two energy states, okay, so they are almost same, it's almost same. So it means that only 9 nuclei will be in excess, okay. So 9 nuclei will be in excess, okay. तो ये जो दो एनर्जी स्टेट्स हैं आपकी, so these two energy states, so lower energy states and higher energy states, so ideally क्या होना चाहिए कि in the absence of any external stimulant, अगर आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो जनरली most of the nuclei, because lower energy state is more stable, so most of the nuclei they should occupy the
ग्राउंड स्टेट, वहीं पे रहना चाहिए, अपर एनर्जी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए. बट एज आई टोल्ड यू द एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस. Okay, so the nuclei they are absorbing energy. The low state and they go back to the excited state. Okay, so this energy difference is really very small, but this plays very important role. Okay, so the population density, ये जो population density है, it means जो 9 nuclei है एक्सेस में, okay, so that play very important role. क्यों play कर रहा है important role? okay, तो इसमें क्या होगा कि generally these nuclei they have the state of equilibrium. ठीक है, क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब, जैसे आपने रखा सैंपल, मतलब 0 डिग्री से आप लेके आए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक. ठीक है, so what will happen, there will be nuclei in the ground state. ठीक है, तो these nuclei they will absorb energy and go to the excited state. फ्लिपिंग के बाद रेजोनेंस में आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है, as the temperature increase, and then the nuclei in the upper state they will emit energy and go back to the ground state. ठीक है, so ये प्रोसेस चल रही है आपका. और जो एक्सेस एनर्जी निकल रही है हमारी, ठीक है, कि जब एनर्जी निकलेगी तो वो that will be recorded. ठीक है, लेकिन after some time what happens कि there is state of equilibrium. उसमें क्या हो रहा है कि the number of nuclei which are going from the ground state to the excited state, okay, so they will absorb energy and go to the excited state. Then the nuclei which are in the excited state, they liberate energy, they release energy and come back to the ground state. So that number becomes equal. okay, अगर जितने न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स में जा रहे हैं, ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और उतने ही न्यूक्लियाई हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आ रहे हैं एनर्जी रिलीज करके. ठीक है, सो देयर इज नो नेट चेंज इन एनर्जी. ठीक है, सो वी कॉल दैट स्टेट ए इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, और इसको हम सैचुरेशन स्टेट भी कहते हैं. क्या वो हम आगे करेंगे, थोड़ा सा समझाएगा इसको सैचुरेशन बोल रहे हैं, बट एट द मोमेंट वी कैन कॉल इट ए इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कि जो सैंपल है उसमें जितने न्यूक्लियाई एनर्जी लेके हायर स्टेट में जा रहे हैं उतने न्यूक्लियाई वापस आ रहे हैं. सो देयर इज नो नेट चेंज इन एनर्जी. ठीक है, तो दैट स्टेट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट में रह रहे हैं. ठीक है, सो बट ठीक है, इवन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, सो दिस पॉपुलेशन डिफरेंस और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिटवीन टू स्टेट्स, वो मेंटेन रहता है. वो क्यों मेंटेन रहता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द लोअर स्टेट इज मोर स्टेबल. लोअर एनर्जी स्टेट्स है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें जनरली न्यूक्लियाई दे प्रेफर्स टू स्टे इन दैट स्टेट. ठीक है, तो वो ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, वो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, सो दैट पॉपुलेशन डिफरेंस इज लो. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अगर टोटल 20 लाख न्यूक्लियाई है, तो 20 लाख न्यूक्लियाई में से जो 10 लाख न्यूक्लियाई है, 20 लाख 9 न्यूक्लियाई, जो 10 लाख न्यूक्लियाई है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में, 10 लाख और 10 लाख 9 न्यूक्लियाई है वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में. सो जो एक्सेस पॉपुलेशन है लोअर एनर्जी स्टेट में, इट इज ओनली 9 न्यूक्लियाई. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि हमें एनएमआर करना है, तो एनएमआर कैसे करेंगे हम लोग? सो दिस इज पॉपुलेशन डिफरेंस, यू गॉट इट. ठीक है, कि ये पॉपुलेशन डिफरेंस है. नो, पॉपुलेशन डिफरेंस व्हाट काइंड ऑफ रोल इज प्लेइंग? Why it is so important to have the population difference? Okay. तो जब हम एज सच इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, दैट नेट एनर्जी चेंज इज 0. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम, तो नेट एनर्जी चेंज, तो दैट इज 0. जितने न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करेंगे उतने जा रहे हैं. सो वी आर नॉट गेटिंग, हमें जो सिग्नल मिलेगा वो तो एनर्जी रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग कि जो न्यूक्लियाई है, तो व्हेन वी आर इरेडिएटिंग दोज न्यूक्लियाई, ठीक है, सो ये प्रोसेस तो चल रही है, ये तो वैसे ही चल रही है बिना एनर्जी के. ठीक है, लेकिन जैसे हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, ठीक है, न्यूक्लियाई को जो ग्राउंड स्टेट में निकली है उनको हमने एनर्जी दी. ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी देने से पहले ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहे थे.
ठीक है, जा रहे थे वापस भी आ रहे थे, लेकिन इक्विलिब्रियम में थे, देयर वाज नो नेट चेंज इन एनर्जी। ठीक है, जैसे हमने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की इस न्यूक्लियस, फिर से न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट में, तो व्हाट हैपेंस कि जो एक्सेस पॉपुलेशन है, सारे के सारे न्यूक्लियस फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 9 न्यूक्लियस जो एक्सेस थे यहाँ पे, सो दे विल also come into resonance, वो रेजोनेंस में आएंगे and they will flip and go to the excited state। ठीक है, तो जो 9 न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में थे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, वो भी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम को दे विल ब्रेक द इक्विलिब्रियम, जो पहले इक्विलिब्रियम में चल रहे थे कि जितने ऊपर जा रहे थे उतने वापस आ रहे थे। सो दोज एक्सेस न्यूक्लियस विल ब्रेक द इक्विलिब्रियम, दे गो टू द एक्साइटेड स्टेट एंड अगेन कम बैक। एंड इफ वी कीप ऑन सप्लाइंग दिस एनर्जी, ठीक है, इफ हम कंटिन्यूअसली इस एनर्जी को सप्लाई करते रहेंगे, सो अगेन वो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद फिर वो निकले जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, देन अगेन कम बैक। ठीक है, सो देन दे कैन अगेन हैव ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कुछ टाइम के बाद फिर वो सारे के सारे जितने, फिर क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम अगेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट विल कम सेम, दैट sample will again acquire a state of equilibrium। So in that state, so the number of nuclei going to the excited state and coming back to the ground state, that becomes equal। ठीक है, बट ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी दी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, so what happens, so जो ग्राउंड स्टेट पे एक्सेस न्यूक्लियस, they will go to the excited state, ठीक है, and then when they will come back to the ground state, ठीक है, सो दे विल रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। और फिर आपने ये बंद कर दिया, आपने एनर्जी दी, यू कॉल इट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, कि आपने एक पल्स दिया, एक रेडिएशन दी उसको, फिर उसको बंद कर दिया। समथिंग लाइक जैसे आपका चाय बना रहे हो आप, ठीक है, वो गैस चल रही है, तो जैसे ही वो बॉईल कर रही है, बॉईल करने के बाद आपने एकदम गैस बंद कर दी, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से अगेन कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो फिर से नीचे आ जाएगा सारा। ठीक है, तो अगर कंटिन्यू रखोगे आप, फिर तो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में आपने एनर्जी दी, रेडिएशन दी, फिर रेडिएशन बंद कर दी। ठीक है, न्यूक्लियस ने रेडिएशन अब्सॉर्ब की, दे कम इनटू रेजोनेंस। कौन सी कितनी रेडिएशन दोगे आप, वो मैंने बता दिया, कब आएगा न्यूक्लियस रेजोनेंस में। ठीक है, सो दिस रेडिएशन शुड मैच विद द इट्स प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, जो न्यूक्लियस की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसके कोरिस्पोंडिंग रेडिएशन देनी है। So in that state, these will absorb energy, okay, and go to the excited state, okay. And then excited state is unstable, so the nuclei they will release energy, come back to the ground state, okay. Now the equilibrium is broken, क्यों? क्योंकि पहले जो न्यूक्लियस एक्सेस पॉपुलेशन थी कि 9 न्यूक्लियस नीचे ज्यादा थे, ठीक है, वो नीचे से गए ऊपर, और जब ऊपर से नीचे आए, इट मींस, ठीक है, सो दैट एक्सेस एनर्जी, वो एनर्जी उन्होंने रिलीज की, तो दैट एक्सेस एनर्जी, देयर विल बी एनर्जी डिफरेंस, सो दैट विल बी रिलीज एंड दैट विल बी डिटेक्टेड, वो एनर्जी डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर, ठीक है, उन न्यूक्लियस की, और देन आफ्टर एम्प्लीफिकेशन इट विल गो टू द डिस्प्ले। ठीक है, so that energy that will be recorded and we will get a signal, क्या वहां में सिग्नल मिलेगा उस केस में। ठीक है, सो सिग्नल कब मिला हमें, ठीक है, when there is a population difference, क्योंकि अगर जितने न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितने न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में, उतनी एक्साइटेड स्टेट में है, और कोई डिफरेंस नहीं है, पॉपुलेशन डिफरेंस नहीं है, सो नेट चेंज एनर्जी दैट विल 0। अगर थोड़ा सा पॉपुलेशन डिफरेंस है, तो जो न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो ग्राउंड स्टेट में है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी, गो टू द एक्साइटेड स्टेट एंड देन अगेन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय दोस न्यूक्लियस, जो एक्सेस न्यूक्लियस है, ठीक है, सो दैट एनर्जी इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी डिटेक्टेड बाय द एनालाइजर, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा, एंड देन इट विल रिकॉर्डेड ऑन द डिस्प्ले एम्प्लीफिकेशंस के बाद। ठीक है, सो वी आर गेटिंग
NMR signal only due to the excess nuclei. So that is why this population distribution is really playing very important role. ठीक है, अगर आपने NMR spectra record करना है, if you want to record it, ठीक है, so in this case the population difference between the two energy state, so that is playing very important role. ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, वो रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, तो अब अगर पॉपुलेशन डिफरेंस रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो एनर्जी, इनके दोनों बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, तो इसके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस भी आएगा. ठीक है, नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जनरली वी यूजुअली से कि विद हायर फ्रीक्वेंसी एनएमआर, अगर हमारे पास एनएमआर हायर फ्रीक्वेंसी का होगा तो वी जनरली प्रेफर आपके पास 60 मेगाहर्ट्ज के बजाय अगर 100 मेगाहर्ट्ज हो, 100 के बजाय 200 हो, 200 के बजाय फिर हैविंग 600 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट है so we call it 600 megahertz is better than the 300 megahertz. Now why we call it, why it is better? वो अच्छा क्यों है? So हाँ बोलिए सर. नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लिया यहाँ पे 9 है सर, हमेशा 9 ही आएगा. फिर से बोलो. सर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लिया जो ग्राउंड स्टेट में है वो यहाँ पे आपने 9 बताया, तो फिर 9 ही पकड़ना है ना हमेशा हम जब करेंगे? नहीं वो नहीं आएगा. वो अभी आ रहे हैं, बस उसी पे आ रहा हूँ मैं, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो माय क्वेश्चन वाज क्यों हायर एनर्जी का. नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट एट 60 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, एंड वी स्टार्टेड विद दिस सैंपल ऑफ अराउंड 20 लाख न्यूक्लियाई. उस सैंपल में then we calculated the excess populations, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आ रहा है. ठीक है, वो आ रहा है 9 न्यूक्लियाई. ठीक है, 20 लाख न्यूक्लियाई, इट्स 9 न्यूक्लियाई. ठीक है, नाउ उस दिन हमने पहले भी किया था कि जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है न्यू is directly proportional to the applied magnetic field, and I told you that you have to remember this relationship. प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर होगी. आज मैं फिर से आपके एक बुक शेयर करूंगा, आपका जो गूगल मीट पे, जो गूगल क्लासरूम पे आपका अकाउंट है, उसमें एक पाविया की बुक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी मिली है मुझे, सो दैट आई विल शेयर. ठीक है, उसको पढ़ो फिर से. अगर नहीं पता चल रहा है किसी को कि व्हाट इज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, देन प्लीज आस्क. वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं समझोगे आप तब तक बहुत मुश्किल है इसको समझना. सो दिस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, सो इन दिस केस, सो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया. सो इन दिस केस, सो व्हाट वी कॉल when the nuclei, when the two nuclei, or this is the strength of the applied magnetic field and this is the energy difference between two states. So this is the energy difference between two states. Okay. So and the magnetic field. So I told you, in the absence of any external magnetic field, so all the nuclei they are having regenerate energy, सभी का सेम होगा. Okay. And when you apply a magnetic field, apply कर रहे हो, then the nuclei they will arrange themselves in two different energy states, parallel to the field and anti-parallel to the field. Okay. So depending upon the strength of, so these nuclei they will start precessing. ठीक है, जैसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो दे विल स्टार्ट प्रोसेसिंग. वो उस मैग्नेटिक को हमने उस दिन किया था, क्यों प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, वो भी किया था हमने, जस्ट लाइक ए स्पिन टॉप.
ठीक है, वो रोटेट कर रहे हैं, तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड और स्पिनिंग मोशन है, उन दोनों के वो दोनों बैलेंस कर रहे हैं और वो स्पिन कर रहा है। उसी तरह से न्यूक्लियाई में भी, so it is having a spin, it's a charged particle, it's having a magnetic field, okay, due to the charge and due to its magnetic field, so it precess, ठीक है, इसकी जो precessional frequency है वो precess करेगा, ठीक है। so depending upon the strength of the magnetic field, उसका magnetic field का कितना strength है, ठीक है, उस पे डिपेंड करके ये precess करेगा, ठीक है। and these two nuclei, ठीक है, so they, ठीक है, so these are having two different energy states, यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट्स आएंगी, so that depends upon the, so for example दिन भी किया हमने, so this is like at field strength of V1, the V1 is field strength, and at field strength of let us suppose V2, so this is E1 dash and this is the E2 dash, this is again E1 and this is E2, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द जो फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, डिपेंडिंग ऑन दैट दीज न्यूक्लियाई दे प्रोसेसेस विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जो इनकी जो एनर्जीज है, ठीक है, जो एनर्जी स्टेट्स है दो न्यूक्लियाई की, डिफरेंट न्यूक्लियाई की, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है दो स्टेट्स के बीच में, एक आपका E1 स्टेट है, डेल्टा E जो है, so it is always equal to E2 minus E1, ठीक है, and this delta E, the energy gap between these two, ठीक है, so that depends upon the delta E, it depends upon the strength of the applied magnetic field, okay. So so delta E, it depends on the, or V naught, or we can say gamma upon 2 pi, जब इसको उल्टी करना है, so it's a gamma upon 2 pi into V naught, so this is gyromagnetic ratio, so gamma is a gyromagnetic ratio, mathematical calculations है, we are not much interested into it, ठीक है, ये quantum calculations के लिए यूज होता है, but we can always calculate, so H into delta nu is equal is directly proportional to V naught, and H is constant, so we can say nu is directly proportional to the magnetic field strength, ठीक है। जो इन दो बीच एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो that correspond to the field strength of the magnetic field, तो जितना ज्यादा फील्ड होगा, फील्ड आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, इन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू V1 आपका लेस फील्ड स्ट्रेंथ है, इसमें एनर्जी डिफरेंस ये आ रहा है, एंड इट इज V2, तो डेल्टा E, और जो V2 है इन दिस केस द एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा E डैश, एंड यू कैन ऑलवेज सी दैट डेल्टा E इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा E डैश, जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है दो स्टेट्स के बीच में, वो इससे कम आएगा हमेशा, ठीक है। नाउ ठीक है, इंपॉर्टेंट, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज that the stronger the magnetic field, there will be the energy gap will be more, ठीक है। जितना ज्यादा आप अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट्स एंड हायर एनर्जी स्टेट्स, उसके बीच में डिफरेंस आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड, ठीक है, इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन, आपका रीजन है कि अगर हमारे पास ये V1 स्टेट है, ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन पूछा था भी, कि दो स्टेट्स है आपके पास V1, ठीक है, वेयर V1 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और दूसरी सिनेरियो में V2 मैग्नेटिक फील्ड, V2 इज मोर देन V1, these are the energy gap difference between two, ठीक है। Now if you have to calculate the population density between these two states, एक पहली स्टेट आएगी आपके पास E1 E2 जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, E1 E2 E2 माइनस E1, और दूसरा डिफरेंस आएगा आपका E2 डैश माइनस E1, ठीक है। तो एक आएगा डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस और डेल्टा E डैश एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में
जो एनर्जी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, या पॉपुलेशन डिफरेंस है, वो ज्यादा होगा। ठीक है, यू गॉट माय क्वेश्चन? अगर नहीं पता चला है, देन अगेन आई एम टेलिंग यू। सो नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहां से E1 से E2 में न्यूक्लियाई को, अगर E1 से E2 में जाना चाहता है, ठीक है, उसको कम एनर्जी लेनी पड़ेगी, वो इजीली चला जाएगा E2 में। ठीक है, और अगर E1 डैश से E2 डैश में जाना चाहता है, ठीक है, इनके बीच में एनर्जी की डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, ये एनर्जी डिफरेंस इतना है और इनके बीच में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस ट्रांजिशन विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, वो अनफेवरेबल होगी। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इतनी इजीली नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन कम एनर्जी वो तो अगर रूम टेम्परेचर पे मिल रही है वहां पे, तो वो इजीली मिल जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन डिफरेंस है, ठीक है, इन दो स्टेट्स के बीच में, सो वो पॉपुलेशन डिफरेंस वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन द फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है, यू गॉट इट? यस तो सर। जब दो स्टेट्स है ये इवन, तो वो डिपेंड कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो कि क्या सर हमेशा 9 ही रहेगा, ये नहीं, 9 हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, तो 60 मेगाहर्ट्ज पे तो ठीक है, 60 मेगाहर्ट्ज पे जब हमने लिया तो तब आ गया डिफरेंस 9। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ये एनर्जी डिफरेंस ये बढ़ाओगे दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है, जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा तो वो उनकी कैपेसिटी भी, ठीक है, कि कितने ऊपर जा पाते हैं, चढ़ते हैं। ठीक है, जैसे समथिंग वो आ गया कि आप डबल डेकर बस में चल रहे हो, ठीक है, तो डबल डेकर बस में ये नीचे है और ऊपर एनर्जी वो कम है, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी आपको, तो आप ऊपर जाना चाहते हो, ऊपर एंजॉय करना चाहते हो, वो चले गए ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम सीढ़ियां बढ़ा देंगे उसकी, ठीक है, ऊपर और ज्यादा, ठीक है, सो दैट मींस ओनली दोज which are more in energetic। जैसे अगर कोई ओल्ड पर्सन है वो नीचे वाली में बैठना चाहेंगे। ठीक है, तो जो थोड़े से एनर्जेटिक है, जो यंग है थोड़े से, वो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। ठीक है, ये मल्टी स्टोरी है, तो 5th 10th फ्लोर पे बहुत कम जाएगा, जिसको कोई काम होगा, ठीक है, या अर्जेंटली जाना होगा, वही चढ़ेगा इतनी सारी स्टेयर्स। ठीक है, या जो उसको पुश करेंगे कोई कि नहीं, उसने काम दे दिया, मीन्स एनर्जी दे दी उसको, ये फाइल ऊपर छोड़ के आओ इसको 5th फ्लोर पे, जैसे हम लोग अभी बैठे हुए 5th फ्लोर पे। ठीक है, तो वो कोई जाएगा, ग्राउंड फ्लोर में तो सभी है, कि वो तभी जाएगा वो। सो इट मींस अब यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि अल्दो रहेगा, ये सारे के सारा डिफरेंस जो है वो दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन ओनली, नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में भी देयर इज अ रेंज, एक अलग से रेंज है। ठीक है, कुछ लोअर एनर्जी, कुछ ज्यादा एनर्जी, कुछ कम एनर्जी का है वो है। तो इस केस में भी अब क्या होगा कि द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज मोर। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली it was found, so depending upon the frequency, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, बिकॉज विद दिस हम दोनों बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, ये फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फील्ड स्ट्रेंथ इट विल अल्टर द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को अल्टर करेगा। सो बी सो दिस so this delta E directly goes to B naught, so we can also say that delta nu, because delta E is equal to H into delta nu, so that is directly proportional to B naught, and this delta nu is not the only frequency, but it is the precessional frequency of that nucleus. Okay, so frequency, and let us suppose this is excess nuclei, excess nuclei, okay, in the ground state. Okay, so if you are starting with the 60 megahertz, okay, अगर लोअर फील्ड पे कर रहे हो आप, so let us suppose you are taking the वही सैंपल ले रहे हो आप 20 लाख न्यूक्लियस का, so the population difference is 9, so that means 9 nuclei are more in the ground state as compared to the excited state. Okay, and if you are increasing it to like 80 megahertz, 80 megahertz it will be 12, 100 megahertz
it will be 16 population difference. 200 megahertz, the population difference is 32. ठीक है, उसी तरह से 600 megahertz, the population difference it becomes again 3 times, 96. Okay, so it means at 600 megahertz there are 96 nuclei. They are more in the lower energy states as compared to the higher energy states. Okay. Now we'll say what difference it makes. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो फर्क ये पड़ रहा है. So that we can understand it with the help of. Now what is the theory? How we are getting the NMR signals? जो हमें NMR signals मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमें क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दिया कि क्या हो रहा है, वही होगा. लेकिन हाउ दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज प्लेइंग रोल, जो पॉपुलेशन एक्सेस है, एक्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी इन द ग्राउंड स्टेट, हाउ दैट इज प्लेइंग मोर रोल. ठीक है, तो वो वहां से डिफाइन करेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा वाई देयर इज एनर्जी डिफरेंस. सो आपके एक पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी 9 रहेगी? नो. ठीक है, तो वो सिर्फ उस केस में कि आपके पास 20 मिलियन न्यूक्लियाई है. 20 मिलियन से अगर आपके पास मान लो 20 के बजाय आपके पास 40 मिलियन है, तो 40 मिलियन न्यूक्लियाई में, ठीक है, तो प्रोपोर्शनली वो भी डिफरेंस वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट मे नॉट बी डबल और ट्रिपल, उसी तरह से ना होगा कि 9 के 18 बन जाएंगे, लेकिन देयर विल बी डेफिनेटली ए डिफरेंस. ठीक है, बट एज यू इंक्रीज द एनर्जी गैप, जैसे जैसे आप एनर्जी गैप बढ़ाते जाओगे, वो पॉपुलेशन डिस्टेंस, वो पॉपुलेशन डेंसिटी, वो प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ाई जाओगे. ठीक है, तो वो जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी. ठीक है, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इक्वेशंस कि वो रहेगा, वो अपर और लोअर में वो डिफरेंस रहेगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, और डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, सो लोअर एनर्जी स्टेट्स और हायर एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, वो डिफरेंस बढ़ते जाएंगे एज यू इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ. सो एज यू इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्रॉम 60 मेगाहर्ट्ज टू द 600 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूं कि ये 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, जो हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज ऑलवेज अप्लाइड इन टेस्ला. ठीक है, उसका तो यूनिट टेस्ला होता है या गॉस. बट ठीक है, जब हम ये 1.41 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, सो 60 के बन जाता है, सॉरी 1.41 टेस्ला बन जाता है. ठीक है, तो जब हम 1.41 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस the nuclei, they will spin with a frequency of 60 megahertz. Okay, and when we are making it 2.35, तो 2.35 टेस्ला, जब और बढ़ा देंगे 2.35 टेस्ला करेंगे, so in this case the nuclei will precess with a frequency of 100 megahertz. तो 100 मेगाहर्ट्ज से करेगा. ठीक है, और अगर 14.1 टेस्ला कर दोगे आप, ठीक है, तो इन दिस केस द न्यूक्लियाई दैट विल प्रीसेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, 600 मेगाहर्ट्ज से प्रीसेस करेगा. सो इट मींस आपको उस न्यूक्लियाई को एक्साइट करने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, उस रेडिएशंस की एनर्जी देनी पड़ेगी. ओनली देन दैट न्यूक्लियाई विल कम इनटू रेजोनेंस. ठीक है, सो एज द वैल्यू ऑफ न्यू, दिस इज न्यू, इज इंक्रीजिंग, इट मींस वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, तो वो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एक्साइट करने के लिए. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. या सो सेकंड ये कि जब आप इनके बीच में आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, तो उस केस में
आप इसको सिर्फ प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से यू कैन ओनली इंक्रीज द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, बट यू कैन नॉट ब्रिंग द न्यूक्लियाई इनटू रेजोनेंस। वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो न्यूक्लियाई अपने आप ही रेजोनेंस में आके फ्लिप कर जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी सिर्फ, वो रेजोनेंस में नहीं आएगा, ठीक है। रेजोनेंस में कब आएगा? व्हेन यू विल सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। आप एक एक्सटर्नल रेडिएशन सप्लाई करते हो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओनली देन it will get into resonance and then go to the it flip and go to the excited state or anti-parallel spin state, okay. So then we will continue with it and I hope you got it. और अगर नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, so let me know, then we'll go to the theory of NMR, how we are getting the NMR signals, ठीक है। उसमें जाएंगे हम लोग, ठीक है। But before that I will take your attendance